Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Imran, and today we will discuss the list of veins of upper limb, the veins located in the upper regions, and also we discuss the function of veins. Before going towards the lecture, please don't forget to subscribe my channel, Dr. Imran's Anatomy Lecture for Paramedics. So, as usual, before going towards the lecture, first of all, we will discuss the diagrammatic view of the lecture. Here you see, this is the diagram of arm, upper limb. Here, the blue color, you showing the veins in upper arm and lower arm. So, forearm and upper arm. If we discuss this list of veins, first of all, here the first vein is called subclavian vein, second one is called axillary vein, third one is called cephalic vein, then there comes basilic vein, then medial cubital vein, and this location basilic vein of forearm because it's located in the forearm region, and there is a median vein which is located in the middle region of the forearm, and cephalic vein of forearm here. And if you look at the hand region, here at the palmar region there are superficial palmar arch and then palmar digital vein on each side of the finger. So this is the list of veins located in our upper limb, means in arm. So now we will discuss the function of each vein here. First of all, we are on subclavian vein. Subclavian vein is a paired vein. On either side of shoulder, or left side or either right side. So the subclavian vein is responsible for the drainage of blood in upper extremities. This is upper extremities. Second one is called axillary vein. Axillary veins are located at the region of axilla. This is axilla. So the region of axilla is called axillary region, and the vein passing out deep into the axillary region is called axillary vein, and axillary vein provides the drainage of blood to the axillary area. Then comes cephalic vein. This is the location of cephalic vein. Cephalic vein is located at here, and it is one of the most common superficial vein of upper limb, and it runs up to the shoulder. After that comes basilic vein. So this is the location of basilic vein, and basilic vein is a superficial vein of forearm, and it is located medially. It is located medially in the middle region of the arm. Then comes medial cubital vein. Medially located here at middle side of the forearm. This is called medial cubital vein. This is a superficial vein of forearm, and it is very important function. It has very important function. Clinically, it is relevant to use vein puncture or taking blood. If someone takes blood for sample collection, so he punctures here at
medial cubital area for the sample collection of blood. Then comes cephalic vein of forearm. So this is cephalic vein of upper region of arm. So this is forearm region, and the vein located here at its forearm is called cephalic vein of forearm. Then located here medially in the middle region of the arm near the wrist is located median vein. After median vein, then comes superficial palmar arch. So these veins are located in the palm region of hand deeply. These are located deeply in the palm region of hand, and beside this superficial palmar arch there are palmar digital veins that is located here in the fingers. And the function of palmar arch is to drainage of blood and supply of blood to the hand bones, hand muscles and hand joint. So this is the whole scenario of upper limb nerves which we have discussed today. Now I will discuss this in Urdu. Students, आज का जो टॉपिक है ये हमारा अपर लिम्ब के ऊपर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे बाजू के अंदर कितनी वेन्स हैं और इनकी लोकेशन किस साइड पे है और इनका फंक्शन क्या है। लेक्चर्स की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये जो टॉप रीजन है, शोल्डर रीजन जिसको कहते हैं, यहाँ पे एक वेन है जिसको हम क्या कहते हैं, सबक्लेवियन वेन कहते हैं। सेकेंड वन, फिर ये जो आर्मपिट है, आर्मपिट का जो एरिया है, बगल का जो एरिया है, इसकी डेप्थ के अंदर जो वेन पाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी वेन कहते हैं। फिर उसके बाद बाजू का जो अपर रीजन होता है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे सिफेलिक वेन। फिर उसके बाद आएगा बिजेलिक वेन। बिजेलिक वेन के बाद फोर आर्म की जो वेन है यहाँ पे बिजेलिक वेन कहलाएगी, और इस तरफ जो आर्म है फोर आर्म की, ये सिफेलिक वेन कहलाएगी। फिर जो दरमियान में अगर देखें तो मीडियल क्यूबिटल वेन आएगी, और इसके निचला एंड जो होगा ये क्या कहलाएगा, मीडियन वेन कहलाएगा। तो मीडियन में हमारे पास दो वेन्स आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियल क्यूबिटल वेन है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सेकंड यहाँ के एपिकल क्लाई के पास का जो एरिया है यहाँ पे मीडियन वेन है। अब उसके बाद जो निचला एरिया है हैंड का, हैंड के पास हमारे पास दो वेन्स और आ जाती हैं। इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुपरफिशियल पामर आर्च है, एक आर्च बना हुआ है, एक इनकी ब्रांचेस बनी हुई हैं और ये डीपली होती हैं, और इनका ब्लड जो है ब्लड सप्लाई ये टोटली अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये वाली जो कहलाएगी पामर डिजिटल वेन, जो फिंगर्स के बिल्कुल पास होगी। तो इन दोनों का अगर फंक्शंस देखा जाए तो ये क्या करती हैं, ड्रेनेज ऑफ ब्लड एंड सप्लाई ऑफ ब्लड किस किस को देती हैं, बोन्स को, जॉइंट्स को और हैंड के मसल्स को इनको सप्लाई होती है। तो ये तो एक लिस्ट ऑफ वेन्स है जो हमारे सामने अपर लिम्ब में बताई गई है। अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आप देखें तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने सबक्लेवियन वेन को डिस्कस किया। सबक्लेवियन वेन पेयर्ड वेन है, जोड़े की शक्ल में है, और ये ईदर साइड लेफ्ट और राइट बोथ साइड पे पाई जाती है शोल्डर के। और इसका फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल टू ड्रेनेज ब्लड इन अपर एक्सट्रीमिटीज। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये जो सबक्लेवियन वेन है
इसका फंक्शन क्या है कि ये जो ड्रेनेज ऑफ ब्लड टू द अपर एक्सट्रीमिटीज, जो अपर एक्सट्रीमिटीज है जिसमें ब्रैकियल प्लेक्सस भी आ जाता है, वो एरिया भी सारा आ जाता है, तो ये अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो पहुंचाती है। सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी निकला है एक्सिला से, और एक्सिला किसको कहते हैं, जो आर्मपिट का एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सिला कहते हैं। और रीजन अगर इसको कहेंगे तो एक्सिलरी रीजन होगा। और बिल्कुल डेप्थ में इसको डीप वेन कंसिडर करेंगे। एक्सिलरी वेन को हम क्या कंसिडर करेंगे, डीप वेन कंसिडर करेंगे। इट इज लोकेटेड इन द डीपर साइड ऑफ आर्मपिट। आर्मपिट का जो डीपर पार्ट है वहां पे इसकी लोकेशन होगी। और इसका फंक्शन क्या है, ये ड्रेनेज ऑफ ब्लड एंड सप्लाई ऑफ ब्लड टू द एक्सिलरी रीजन, जो आर्मपिट का एरिया उस एरिया में ब्लड सप्लाई देगी। उसके बाद यहां पे जो आपको बड़ी सी वेन नजर आ रही है इसको हम कहते हैं सिफेलिक वेन। अब सिफेलिक वेन क्या है, सिफेलिक वेन वो वाइड बड़ी वेन है, सुपरफिशियल वेन है। सुपरफिशियल मींस जो आपको सरफेस पे नजर आती है, स्किन की बिल्कुल सरफेस पे नजर आती है। तो ये सुपरफिशियल वेन यहां से स्टार्ट होती है, वाइड है जो बड़ी वेन है, जो यहां से लेकर ऊपर अपर आर्म शोल्डर तक जाएगी। तो जो सिफेलिक वेन है रन अप टू द शोल्डर, यहां से शुरू होगी और शोल्डर तक जाएगी। सिफेलिक वेन के बाद आ जाता है बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन मीडियल से थोड़ा सा हट के यहां पे होती है। ये मीडियल साइड है जो दरमियान में बाजू की आती है, और ये लैटरली दूसरी साइड है, और यहां पे बेसिलिक वेन पाई जाती है। बेसिलिक वेन के बाद आ जाता है मीडियन साइड आ जाता है, जो बाजू का बिल्कुल दरमियान वाली ये आ रही है, दिस इज कॉल्ड मीडियन। अगर तो ये नर्व जा रही है तो मीडियन नर्व कहलाएगी, अगर आर्टरी जा रही है तो मिडिल आर्टरी कहलाएगी। तो यहाँ पे हम वेन डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आप इसको कहेंगे मीडियन वेन कहेंगे। तो मीडियन वेन का जो ये पार्ट है एल्बो के नियर बाई जो है, इसको हम क्या कहेंगे, मीडियल क्यूबिटल वेन। मीडियल क्यूबिटल वेन का क्लिनिकल से बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है, रेलेवेंट टू क्लिनिकल इसको कहा जाता है, क्लिनिक से रेलेवेंट है। क्यों है, क्योंकि ये जो मीडियल क्यूबिटल वेन है यहां से वेन को पंक्चर किया जाता है ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। जो आप जिसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए पंक्चर जिसको करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियल क्यूबिटल वेन। अब इसका मीडियन पार्ट जैसे ही नीचे आएगा तो यहां पे जब आएगी तो दैट इज कॉल्ड मीडियन वेन इन द मिडिल साइड ऑफ द आर्म। उसके बाद हमारे पास अगर मीडियन से इस तरफ देखें तो सिफेलिक वेन ऑफ फोर आर्म। अब एल्बो से आगे जो एरिया आर्म का शुरू हो गया वो क्या कहलाएगा, फोर आर्म कहलाएगा। तो जो सिफेलिक वेन का निचला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, सिफेलिक वेन ऑफ फोर आर्म कहलाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो आखिर में दो वेन्स आती हैं, पहले नंबर पे हमारे पास सुपरफिशियल पामर आर्च है। अब जो सुपरफिशियल पामर आर्च है बिल्कुल हमारी जो हथेली है यहाँ पे डेप्थ में पाई जाती है, डीपर वेन है, बेसिकली इट इज अ डीपर वेन, डीप पार्ट ऑफ द वेन। और साइड पे अगर आप देखें तो पामर डिजिटल वेन है जो बिल्कुल फिंगर्स के इस एरिया में पाई जाती है यहाँ पे। तो कलेक्टिवली जो पामर आर्च है इसका फंक्शन क्या है, ये एक तो ये है, ये डीप वेन है, बिल्कुल गहराई में पाई जाती है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ड्रेनिंग एंड सप्लाई ऑफ ब्लड टू द बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स ऑफ हैंड। यानी कि जो पामर आर्च की वेन है इसकी जो सप्लाई है ब्लड की वो किस किस को जाएगी, हाथ की जो बोन्स है, हड्डियां हाथ की उनको जाएगी, हाथ के अंदर फिंगर्स के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनको जाएंगी, और प्लस जो मसल्स हैं हैंड के उनके अंदर जाएगी। तो ये बेसिकली सारा जो फंक्शन ऑफ अपर लिम्ब वेन्स है। एक दो फिर मैं थोड़ा सा
इसको रिवाइज कर देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए कि ये सामने आपके डायग्राम आर्म की है, बाजू की डायग्राम बनी हुई है। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है, सबक्लेवियन वेन है। सबक्लेवियन वेन क्या है, पेड़ में है, जोड़े की शक्ल में होती है और ईदर साइड, ये जितनी भी हम डिस्कस करें ऑन द ईदर साइड ऑफ बॉडी है, लेफ्ट और राइट आप कह सकते हैं। तो ये सबक्लेवियन वेन है, इसका मेजर फंक्शन क्या है, ड्रेनेज ऑफ ब्लड एंड सप्लाई ऑफ ब्लड टू द अपर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज का एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया, ये बेसिकली शोल्डर से ऊपर वाला जो एरिया है उसमें ब्लड की सप्लाई रहती है। सेकंड नंबर पे आप देखें तो आपको मिलेगा एक्सेलरी वेन। एक्सेलरी वेन को अगर आप देखें तो बिल्कुल डेप्थ के अंदर पाई जाती है एक्सिला के। एक्सेलरी निकला है एक्सिला से, एक्सिला आर्मपिट एरिया को कहते हैं, और अगर उसको रीजन लेंगे तो एक्सिला से निकलेगा एक्सेलरी रीजन। तो बिल्कुल बगल के डेप्थ में जो वेन पाई जाती है उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरी वेन कहेंगे। और इसका फंक्शन क्या है, इसका ड्रेनेज ऑफ ब्लड एंड सप्लाई ऑफ ब्लड टू द आर्मपिट रीजन, बगल के एरिया की सप्लाई है ब्लड की। उसके बाद आप यहां पे देखें तो सिफेलिक वेन आएगा। सिफेलिक वेन वाइड बड़ी वेन है, सुपरफिशियल वेन है, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये यहां से लेकर ऊपर शोल्डर तक जाएगी। उसके बाद इसका जो निचला पार्ट है, यहां कोनी से ऊपर तक शोल्डर तक, ये बेसिकली ग्रेट सिफेलिक वेन भी आप आर्म की इसको कह सकते हैं, वो सिफेलिक वेन है। और अगर ये जहां पे हम निचला पार्ट इसको देखें तो ये भी सिफेलिक वेन होगा पार्ट, लेकिन आगे हम क्या अलग लिख दिया, सिफेलिक वेन ऑफ फोर आर्म, ये फोर आर्म की है। फिर उसके बाद मीडियल से थोड़ा सा हट के इस तरफ क्या आएगी, बेसिलिक वेन आएगी। बेसिलिक वेन का जो निचला पार्ट है फोर आर्म के पास, उसको बेसिलिक वेन ऑफ फोर आर्म कहेंगे। फिर हम उसके बाद मीडियन पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जो बाजू का मीडियन एरिया है, लोकेटेड इन द मिडल, यानी बिल्कुल जो लाइन आपको दरमियान में नजर आ रही है, ये क्या है, मीडियन पार्ट है। अब मीडियन में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे जो वेन प्रेजेंट है इसको क्या कहेंगे, मीडियल क्यूबिटल वेन। बेसिकली मीडियल क्यूबिटल वेन जो है ये सुपरफिशियल वेन ऑफ फोर आर्म है। फोर आर्म की क्या है, सुपरफिशियल वेन है। और इस वेन का क्लिनिकल से बहुत रिलेशन है। जब ब्लड का सैंपल लेने के लिए पंक्चर किया जाता है तो इसी वेन को किया जाता है, जिसको हम मीडियल क्यूबिटल वेन कहते हैं। इसी वेन को पंक्चर करके ब्लड सैंपल लिया जाता है। अब इस मीडियल क्यूबिटल वेन का जो लोअर पार्ट होगा क्लाई से बिल्कुल बैक साइड पे, इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन वेन कहेंगे। तो यहां तक तो हमारे पास ये हमने अपर लोअर में दोनों तरफ डिस्कस कर ली। उसके बाद आखिर में जो हमारे पास आता है हैंड, हाथ का एरिया आता है, तो यहाँ पे दो वेन्स और हमारे पास है। एक कहलाएगी सुपरफिशियल पामर आर्च और जो सेकंड वन है वो क्या कहलाएगी, पामर डिजिटल वेन। तो सुपरफिशियल जो पामर आर्च है ये बिल्कुल हमारी हथेली के डेप्थ में पाई जाती है, हथेली के अंदर की तरफ पाई जाती है। और इनका जो फंक्शन है, फंक्शन इनका क्या है, इन दोनों को मिला के मैं फिर बता देता हूँ। इस तरफ क्या है, पामर डिजिटल वेन है। डिजिटल निकला है डिजिट से, जो हमारे फिंगर्स के डिजिट्स होते हैं इनके अंदर ये पाई जाती है। तो सुपरफिशियल पामर आर्च और पामर डिजिटल वेन दोनों का फंक्शन ये है कि ये ब्लड की ड्रेनेज और ब्लड की सप्लाई हाथ की बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स को करते हैं, राइट। तो ये इसको दोबारा मैंने आपको लोगों के लिए आसानी के लिए इसको ब्रीफ कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दूसरा लेक्चर करेंगे। जज़ाकल्लाह।